Assalamu alaikum, dear students of 10th class. Dear students, today's topic is the 19th century. It is the period of advancement, it is the period of globalization and modernization, as we have already learnt about this. Dear students, today's subtopic will remain indentured labor migration from India. So there is a simple definition of indentured labor, and there is also the cause of this migration, why these laborers migrate from India to other states, and what is the present scenario of this endangered labor, and what was the treatment with these such, how they were regarded, these endangered labor. So this is all about that very thing, and why they were working for the same work. And there are also two figures on your textbook, page 64-65. We will also identify this. Dear students, before I may start today's lesson, a topic, I will try to understand you from two examples. One example of this endangered labor is that जो घर में हमें मजदूर होते हैं एक खास मुद्दत तक, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 1 साल के लिए या 2 साल के लिए उनको एक एग्रीमेंट होता है अपने मालिक के साथ, यानी कि उन घर वालों के साथ, उस मजदूर को, जो कि घर का मजदूर एक होता है, घर का नौकर एक होता है, घर में काम करता है, उसको एक एग्रीमेंट होता है कि आपको हमारे साथ ही काम करना है और आपको कहीं नहीं जाना है। उसको भी हम किसी हद तक इंडेंजर्ड लेबर कह सकते हैं, मिसाल के लिए, क्योंकि उसको भी एक एग्रीमेंट होता है अपने मालिक के साथ खास मुद्दत तक। ये इसके लिए एक एग्जाम्पल है। दूसरी एग्जाम्पल ये है इसके लिए समझने के लिए, और वो ट्रू एग्जाम्पल है इसके लिए, एग्जैक्ट एग्जाम्पल है कि आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स पे या गवर्नमेंट के कंस्ट्रक्शंस पे, फ्लाईओवर पे या ब्रिजेस, बड़े बड़े ब्रिजेस पे, बड़े बड़े पुलों पे, या गवर्नमेंट के बड़े बड़े कामों पे या रेलवेज पे, इन बड़े बड़े बिल्डिंग्स में, इन बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस में आपने देखा होगा प्यारे बच्चों कि बहुत सारी तादाद में मजदूर बाहर से आते हैं। वो भी बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं, इंडिया से वो भी आते हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद उनकी होती है। किसी के घर वो काम करने के लिए नहीं जाते हैं, इन बिहारियों की तरह, जिस तरह ये बिहारी बाहर से जो ये आते हैं, ये आधे सीमेंट का काम करते हैं, आधे वो पीओपी करते हैं, या आधे और कोई काम करते हैं, आधे वो ईंटों का काम करते हैं। लेकिन वो इनसे थोड़ा सा हट कर हैं कि उनको एक कॉन्ट्रैक्ट होता है अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ, अपने मालिक के साथ, वो बड़े बड़े प्रोजेक्टों पर काम करते हैं, तो उनको हम इंडेंजर्ड लेबर कहेंगे। सो इन शॉर्ट वी विल कम ऑन नाउ your topic, that is the indentured labor. What is the definition of this indentured labor? So a simple definition is here, a short definition, that is a bonded labor. A bonded labor, a bond means a close relationship with a contract. A bonded laborer under contract, that has a contract, a written contract, or we can say a written agreement, to work for an employer, अपने मालिक के लिए काम वो करता है for a specific period of time, that is known as the indentured labor. So indentured labor is a bonded labor where contract to work for an employer for a specific period of time. So what was the cause of this? What is the historical background of this indentured labor, why they were migrating? So this arises here question that during 19th century, due to industrialization, modernization, or the fast economic growth,
and advancement in technology, there were two groups in the society. There first was the higher group and second was the lower group. So the higher group, in the higher group, rich became rich and poor became poor. So these poor people were living very tough and harsh life. So they were not getting work or job at that very place, especially in UP, Bihar, Central India, and Tamil Nadu. So they migrated from India to various states and went to work on construction projects, which I said to you, like railways, roads, mines, bridges. Such laborers were hired under contract, which promised return to India after 5 years. यानी कि एक 5 साल के लिए इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था, जिसमें आने जाने का खर्चा भी उनको दिया जाता था. माइग्रेशन इन्होंने इसीलिए क्योंकि उनको वहाँ पे मजदूरी नहीं मिलती थी, उनको वहाँ पे काम नहीं मिलता था और उनकी ज़िंदगी वहाँ पे मुश्किल की ज़िंदगी वो वहाँ पे गुजारते थे और अपने अयाल के लिए, अपने आप के लिए, अपनी जान के लिए, इस रोज़ी के लिए हासिल करने के लिए ये यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. तो प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम प्रेजेंट में देखेंगे, प्रेजेंट दिस आल्सो हैपनिंग इन द सेम टाइम, इन सेम पीरियड, दैट इज फ्रॉम यूपी, बिहार, सेंट्रल इंडिया, तमिलनाडु. ये यहाँ से इंडेंजर्ड लेबर आते हैं. तो इनके साथ, बेचारों के साथ फिर भी जुल्म होता था. फर्स्ट उनको कम कमीशन दिया जाता था, उनको कम तनख्वाह दी जाती थी और फोर्सली उनको लाया जाता था, फोर्सली उनको काम कराया जाता था. तो उनको रिकॉर्ड 19वीं सेंचुरी में ज़्यादा उनके साथ हुआ एक गुलाम की तरफ, उनको नौकर की तरफ बदसलूकी उनके साथ की गई, जिसको हम कहते हैं न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी. तो एट द सेम टाइम देयर वाज लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन उनके लिए बहुत हार्श था, बहुत सख्त था, बहुत बुरा था. उनके लिए कोई लीगल राइट नहीं था, उनका कोई राइट नहीं था, लीगली उनको कोई राइट नहीं था. जो उनको ऑर्डर निकाला जाता था, जो उनको कहता था मालिक, वो उनको करना पड़ता था. सो देयर वाज नो एनी सेफ्टी और सिक्योरिटी, उनके लिए कुछ नहीं था. सो वो इवन काम कर स्टेड ऑन वर्क इवन आफ्टर द एंड ऑफ द वर्क. जब उनको काम खत्म होता था उसके बाद भी उनको वो कंट्रैक्टर जो होता था उनको काम पे लगाता था कि अभी आपका टाइम नहीं होगा, यानी कि एक जुल्म था. जब वो घर जाते थे, रिटर्न होम्स फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ कम वक्त के लिए वो जाते थे बेचारे घर. अब यहाँ पे दूसरा सवाल होता है कि वो क्यों कंटिन्यू करते थे अपना वर्क, फिर भी वो कंटिन्यू क्यों करते थे वर्क. इसलिए वो करते थे काम क्योंकि वो गरीबी से तंग आए थे, उन पे वहां पे भी जुल्म था, सितम था, जबर था. तो उनको काम नहीं वहां पे मिल रहा था क्योंकि हर कोई काम आप मशीनें करते थे. जैसे यहाँ पे ट्रैक्टर आए, जब से यहाँ पे ट्रैक्टर आने लगे तो अब कोई यहाँ पे हल चलाने वाला या हल जुतने वाला, उसके लिए कोई मजदूर जो है वो बचत आ गई. तो इसी तरह वहाँ पे 19वीं सेंचुरी में और आजकल भी इतना मशीनों का जोर वहाँ पे हुआ, यानी कि इतनी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी वहाँ पे आई कि इनको बेचारों को काम नहीं बनता था, इसलिए ये माइग्रेशन करते थे. दैट इज नोन एज द इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया. At the same time, dear my dear students, there are two figures on your textbook on page number 65 and 64. So on 65 and 64 page number of your textbook, so you can also see there what treatment, how they were treated at that very early times on the page number 64. So यहाँ पे आप देखिए, ये इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था, एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म, जिसपे एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म इनको था इंडेंजर्ड लेबर के लिए. पहले इनसे कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता था. दूसरा, फोटोग्राफर्स इनके यहाँ पे हैं, इंडेंजर्ड लेबर फोटोग्राफर फॉर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि इनकी पहचान के लिए इनके नाम नहीं दिए जाते थे, बल्कि नाम के बदले नंबर इनके लिए जाते थे. For the employer, the number and not the name is mattered. यानी कि नाम इनके लिए मैटर नहीं करता था. ये यहाँ पे
नजर आ रहा है, यानी कि इसका कुछ नाम होना चाहिए, लेकिन नाम के बदला इस मजदूर का, इस इंडेंजर्ड लेबर का 1329, इस तरह यहाँ पे 1344, यानी कि 1210। हालांकि बेचारे ये भी इंसान थे, लेकिन इनका कोई हक नहीं था, नाम के बदले उनको नंबर दिया जाता था। So this was all about today's topic. Hope you will enjoy this video class and watch it clearly, and you will work hard, my dear students. Assalamu alaikum.